بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ قوم نوح پر اللہ تعالیٰ کا عذاب کن وجوہات کی بنا پر آیا۔ جب زمین میں ہر طرف کفر و شرک کی تاریکی چھائی ہوئی تھی، پتھر کے بتوں کی پوجا کرنے والے بے شمار تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کا نام لیوا چند ایک کے سوا کوئی نہ تھا۔ اب اللہ تعالیٰ نے اپنے ماننے والے ان چند برگزیدہ بندوں میں سے ایک کو اپنا پیغمبر منتخب فرما لیا۔ یہ پیغمبر حضرت نوح علیہ السلام تھے۔ جب زمین پر ہر طرف گمراہی پھیل گئی اور لوگ اپنے خالق حقیقی کو بھول گئے، تو اللہ رب العزت نے حضرت نوح علیہ السلام کو اپنا رسول بنا کر ان لوگوں کی طرف بھیجا تاکہ وہ انہیں راہ ہدایت دکھلائیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جس وقت پیغمبری عطا فرمائی، اس وقت ان کی عمر تقریباً 480 سال تھی، یعنی اس وقت کے حساب سے وہ بالکل جوان تھے۔ لہذا انہوں نے اپنی قوم کو بت پرستی سے نکالنے کے لیے دن رات ایک کر دیے۔ ہر وقت اور ہر لمحہ وہ اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی طرف دعوت دیتے رہے۔ گھر گھر جا کر، بازاروں میں جا کر، گلیوں میں کھڑے ہو کر، کھیتوں اور ویرانوں میں جا کر ان کو راہ ہدایت کی تبلیغ کی۔ ایک ایک فرد کو سمجھایا، اجتماعی طور پر سب کو سمجھایا، خفیہ اور اعلانیہ سمجھایا، کبھی رغبت کے ساتھ اور کبھی وعید کے ساتھ سمجھایا، لیکن افسوس یہ قوم تس سے مس نہ ہوئی۔ جیسے جیسے حضرت نوح علیہ السلام ان کو زیادہ سے زیادہ تبلیغ کرتے رہے، ویسے ویسے ان کی بغاوت و سرکشی بڑھتی رہی، حتیٰ کہ لوگوں نے ان کو مارنا پیٹنا تک شروع کر دیا۔ راہ چلتے ہوئے ان پر پتھر پھینکتے، طرح طرح کے ان پر جملے کستے، سب مل کر خوب ان کا مذاق اڑاتے، یہاں تک نوبت پہنچ گئی کہ ان کی بیوی اور ایک بیٹا کنان بھی ان کے خلاف ہو گئے۔ حتیٰ کہ حضرت نوح علیہ السلام وہ لوگ مارتے پیٹتے رہتے، لیکن ان کا بیٹا کنان اور ان کی بیوی کھڑے تماشا دیکھتے رہتے، چھڑاتے تک نہیں تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام بڑے صبر و تحمل کے ساتھ یہ سب ظلم و تشدد برداشت کرتے رہے، مگر پھر بھی اپنی قوم کو اسی طرح تبلیغ جاری رکھی۔ حضرت نوح علیہ السلام اسی طرح مسلسل 950 سال تک اپنی قوم کو راہ ہدایت کی طرف بلاتے رہے، مگر ان لوگوں نے ان کی ایک نہ سنی۔ حضرت نوح علیہ السلام جب ان کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈراتے تو وہ لوگ کہے مار مار کر ہنستے اور ان کا مذاق اڑاتے ہوئے کہتے، دیکھو یہ دیوانہ کیسی باتیں کر رہا ہے۔ پھر کہتے کہ تم نے جو عذاب کی رت لگا رکھی ہے، کیوں نہیں لے آتے وہ عذاب؟ جلدی لاؤ اپنا عذاب، ہمیں بڑی شدت سے اس کا انتظار ہے۔ ایسی باتیں سن سن کر حضرت نوح علیہ السلام دل ہی دل میں کرتے رہتے، مگر پھر بھی ان کے خلاف کوئی بد دعا نہ کرتے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کو حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر سخت غصہ آیا کہ میرا بندہ 950 سال سے مسلسل ان کو تبلیغ کر رہا ہے، مگر ابھی تک صرف 80 آدمی مجھ پر ایمان لائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی طرف پیغام بھیجا کہ نوح صبر و تحمل کی تو نے حد کر دی، اب اس قوم میں سے
कोई भी आदमी मुझ पर ईमान नहीं लाएगा, लिहाजा अब उनके खिलाफ बद्दुआ करो और जालिमों के बारे में अब मुझसे बात न करना, बल्कि अब वो गर्क कर दिए जाएंगे। अब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम के खिलाफ बद्दुआ की, या अल्लाह, रूह ज़मीन पर किसी एक काफिर को भी जिंदा न छोड़। उसके बाद अल्लाह ताला ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को फरमाया कि तुम एक बड़ी सी कश्ती तैयार करो जिसमें तुम और तुम्हारे अहले ईमान साथी पनाह ले सकेंगे, क्योंकि अब मैं बहुत बड़ा और खौफनाक सैलाब भेजने वाला हूँ जिसमें रूह ज़मीन के तमाम काफिर मुशरिक और जानवर तक हलाक कर दिए जाएंगे। और हाँ, जब कश्ती बनकर तैयार हो जाए तो उसमें अपने अहले खाना समेत अपने तमाम अहले ईमान साथियों और तमाम जानवरों में से एक जोड़ा भी बिठा लेना, क्योंकि जब सैलाब आएगा तो उस कश्ती से बाहर कोई इंसान और कोई जानवर जिंदा नहीं रहेगा। अल्लाह ताला के हुक्म से हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अपने मोमिन साथियों के साथ मिलकर एक बहुत बड़ी कश्ती बनाना शुरू कर दी। जब काफिर लोग उनको कश्ती बनाते हुए देखते तो उन पर बहुत हंसते और कहते, ऐ नूह, पहले तो तुम खेती बाड़ी किया करते थे, अब ये बड़ाई का काम कब से शुरू कर दिया। उनकी बीवी भी लोगों के साथ मिलकर कहती कि अब मुझे भी यकीन हो गया है कि इनकी दिमागी हालत दुरुस्त नहीं है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम दुआ में फरमाते, तुम लोग अब भी बाज आ जाओ, हो सकता है कि अल्लाह ताला अपने अजाब को टाल दे। अगर तुम लोग इसी तरह सरकशी करते रहे तो तबाह बर्बाद हो जाओगे। मगर ये लोग कहाँ मानने वाले थे, उल्टा मजाक उड़ाते हुए कहते, अच्छा तुम ये बताओ कि इतनी बड़ी कश्ती जो तुम बना रहे हो, इसको चलाने के लिए पानी कहाँ से लाओगे। कभी कहते, बिलफर्ज अगर तुम्हारे खुदा ने वाकई अजाब भेज भी दिया तो ये ऊंचे ऊंचे पहाड़ किस लिए हैं, हम इन पर चढ़ जाएंगे। यानी हज़रत नूह अलैहिस्सलाम उनको जितना समझाते वो उतना ही उनका मजाक उड़ाते। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम खामोशी से अपने काम में लगे रहते। कुछ अरसे बाद एक बहुत बड़ी कश्ती बनकर तैयार हो गई। इसकी 3 मंजिलें थी, यानी हर मंजिल 10-10 गज ऊंची थी। फिर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से सबसे निचली मंजिल में जानवरों और चौपाइयों को रखा। दरमियानी मंजिल में अपने अहले खाना समेत तमाम मोमिनीन और खाने पीने का सामान रखा। तीसरी मंजिल में चरिंद परिंद ठहराए गए। जब कश्ती में तमाम अहले ईमान और जानवरों का एक एक जोड़ा दाखिल हो गया तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे कुनान और बीवी को भी आवाज़ दी कि वो भी कश्ती में आ जाएं, वरना अल्लाह ताला का अज़ाब उनको भी अपने लपेट में ले लेगा। कुनान ने कहा, अब मेरी फिक्र न करें, मैं तो भागकर इस पहाड़ पर चढ़ जाऊंगा। इस दौरान अल्लाह ताला ने फरमाया, ऐ नूह, अपनी बीवी और बेटे कुनान को छोड़ दो, क्योंकि ये काफिर होने की वजह से तुम्हारे खानदान में शामिल नहीं है। अल्लाह ताला का ये फरमान सुनकर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने कश्ती का दरवाज़ा बंद किया और अल्लाह ताला की हम्दो सना में मशगूल होकर अजाब का इंतज़ार करने लगे। अचानक ज़मीन से पानी उबलना शुरू हो गया और आसमान से मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। पानी का हर हर कतरा इतना बड़ा था जैसे पानी का मशगीज़ा होता है। देखते ही देखते
जमीन पर इतना पानी हो गया कि कश्ती ऊपर उठने लगी। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने कश्ती में से झांका तो क्या देखते हैं कि वो तमाम काफिर और मुशरिक जो रोजाना उनका मजाक उड़ाया करते थे, सब चीहो पुकार करते हुए पानी में गोते खा रहे हैं। करीब ही उनकी बीवी भी गोते खा रही है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को देखने के लिए नजर इधर उधर दौड़ाई तो देखा कि वो भागता हुआ पहाड़ पर चढ़ रहा है। लेकिन चंद ही लम्हे गुजरे होंगे कि पानी ने उसको भी आ लिया। हत्ता कि थोड़ी ही देर में पानी पहाड़ से भी 15-20 गज ऊंचा हो चुका था। अब सिवाय हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती के पूरी दुनिया में कोई इंसान और कोई जानवर जिंदा ना बचा था। सब कुछ तहस नहस होकर निस्तो नाबूद हो गया। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती अल्लाह ताला के हुक्म से तैरती हुई तुर्की की ज्योति पहाड़ पर आकर ठहर गई। उसके बाद अल्लाह ताला ने हुक्म दिया। इसके बाद अल्लाह ताला ने जमीन को हुक्म दिया कि वो अपना पानी निगल ले और आसमान को हुक्म दिया कि वो अब थम जाए। फिर अल्लाह ताला ने खुश्क और तेज हवाएं चलाई जिनसे तमाम जमीन खुश्क हो गई। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम अपने तमाम साथियों और जानवरों को लेकर कश्ती से बाहर निकले और उसी पहाड़ के गुर्दनवाह में एक बस्ती बसा ली। दोस्तों, ये थी मेरी आज की वीडियो। नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको मेरी आज की वीडियो कैसी लगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मज़ीद ऐसी वीडियोस के लिए मेरे YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। तो जल्द मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दें। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।